मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ that He has given me this opportunity कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा to speak for His word कि मैं उसके कलाम के लिए बोलूँ in front of you. आप सबके सामने। This is a testimony where I'm standing in front of you ये एक गवाही है मेरी जिंदगी में जो मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। because the past few days क्योंकि पिछले कुछ दिनों में I called Asif bhai मैंने आसिफ भाई को कॉल की and I said I am not okay in my life. My situation is like on and off. मैंने उनको बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। So I said that I think I'll not able to speak what you have given me the responsibility. तो मैंने उनको बताया कि मैं वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकती जो आपने मुझे दी है। Second call I called Harun. I spoke to Harun bhai. दूसरी कॉल मैंने हारून भाई को की I told him the same thing. और मैंने उनसे वही बात की, But still, लेकिन फिर भी God chose me to speak. खुदा ने मुझे चुना कि मैं इस्तेमाल करूं। This is the testimony. ये मेरी गवाही। Before we go ahead with the third saying, let's pray. इससे बेशतर कि हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़े, मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करें। Heavenly Father, ऐ खुदा, thank you for this gathering and for this beautiful day. मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस दिन के लिए और इस गैदरिंग के लिए। Lord, I pray ऐ खुदा, मैं दुआ करती for हूँ both of us. हम दोनों के लिए। Let your Holy Spirit guide us. अपने पाक रूह को हम पर नाजिल कर Let your true words fill our hearts. कि आपका जिंदा कलाम हमारे दिलों को भर दे। Let each and every word which comes from our mouth glorify your name. जो भी हम अल्फाज बोले वो तेरे नाम के जलाल के लिए हो। Lord, bless this all people ऐ खुदा, इन सब लोगों को बरकत दे who are gonna hear this sermon जो इस सरमन को सुने and bless their heart. और इनके दिलों को छू, Let their hearts be open. इनके दिलों को खोल, Let their ears be open. इनके कानों को खोल। And I pray that you take charge of all this session, Lord. मैं दुआ करती हूँ कि तू इस सारे सेशन का चार्ज ले ले, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। So I request Gerald to read for me John chapter 19 verse 26 and 27. Then we'll make it in Urdu to someone. Sister Mariam will read for us. Reading from John chapter 19 verse 26 and 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple took her to his own home. The word of the Lord. यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाक कलाम की वसीला से हम मंगल पाएं। So the title for my message today, मेरे मैसेज का उन्वान ये है, Love that cares even in pain. प्यार जो दर्द में भी ज्यादा है। So we'll see this by point wise. हम इसको नुक्ते नजर से देखेंगे, पॉइंट्स के लिहाज से देखेंगे। So the first point is पहला पॉइंट ये है कि love thinks of others even in suffering. कि प्यार दूसरों के बारे में सोचता है बेशक वो तकलीफ में हो। Jesus teaches us खुदा हमें सिखाता है that true love is not selfish. कि जो सच्चा प्यार होता है वो खुदगर्ज नहीं होता। That's why इसीलिए the mother, माँ, she has unconditional love for her kids. माँ का अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव होता है, बेमिसाल प्यार होता है। Even in deepest pain, बेशक वो गहरे दर्द में हो, he cared for his mother. वो अपने बच्चों के लिए वो गहरे दर्द में भी अपनी माँ की परवाह कर रहा था। So when we go through difficulties, जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं we often focus only on our problems. हम सिर्फ अपनी मुश्किलात को देखते So हैं। as Sister Parishi said, जैसे कि सिस्टर परी ने बोला, when we are in pain or when we are in problems, जब हम दर्द में होते हैं या तकलीफ में होते हैं या प्रॉब्लम्स में होते हैं, we just think of ourselves and we are behind to solve these issues. हम सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। But what Jesus said, लेकिन यीशु ने क्या कहा? he said, you look beyond yourself. यीशु ने कहा कि अपने को छोड़ के दूसरों की तरफ देखो, अपने से आगे देखो। So the second saying
दूसरा कलमा ये है what we heard now, जो हमने अभी सुना, when there was two thieves, right and left. जहाँ पे दो चोर थे दाएं और बाएं तरफ। So the one thief, पहला चोर he was speaking to Lord. वो खुदा से बात कर रहा था। Jesus was in so much of pain, right? खुदा बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था। ऐसा ही है, There was all blood. There was a crown on his head. हर तरफ खून ही खून था, उसके सर पे ताज था कांटों का। That pain was terrific. ये पेन खौफनाक है, ये दर्द खौफनाक है। But still in that situation, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में he spoke to that thief. उसने उस चोर से बात की। He said, "You will be with me in उसने paradise." कहा तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। हालेलुया। This is the biggest example I can give to you. ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। Here Jesus is suffering physically and emotionally. यहाँ खुदा जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर दोनों तरह से वो सफर कर रहा था, तकलीफ में था। Yet लेकिन फिर भी he noticed someone else's pain. उसने दूसरे की तकलीफ को महसूस किया। So in today's world, आज के कलमा में, today's world, there is one आजकल दुनिया में there is one harsh reality. ये आजकल की तल्ख रियलिटी है। People look to us लोग हमारी तरफ देखते हैं when we are in pain. जब हम दर्द में होते हैं, They will come to us. वो हमारे पास आते They हैं, will comfort us. वो हमें तसल्ली देते हैं। It's okay, sister, brother, nothing will happen. इट्स ओके भाई बहन, कोई मसला नहीं है, Everything will be fine. सब कुछ ठीक हो जाएगा। They will leave in that 1 minute. और फिर 1 मिनट के बाद वो चले जाते हैं। But who is your true friend? लेकिन आपका सच्चा दोस्त कौन है? It's Jesus. ये खुदा है, मसीह है। Where he truly sees जब वो सच्चाई से हकीकी तौर पर देखता है and he help us to solve that issues or problems whatever we have. और वो जब देखता है तो वो हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी सिचुएशंस, हमारे हालात को सही करने के लिए हमें मदद देता है। But the human, लेकिन इंसान क्या करता है? he will just come for that 1 second or 1 minute. वो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जस्ट आता है He will go. और फिर चला जाता है। The example for this what I have, इसके लिए मेरे पास एक मिसाल है, as we are all nurses over here. और हम यहाँ पे ज्यादातर नर्सेज ही हैं। We nurses have long shifts, right? We are working morning, we have night shifts. हमारी नर्सेज की लंबी शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग भी होती हैं, नाइट्स भी होती हैं। So when the nurse is exhausted with her duties, जब नर्स जो होती है उकता जाती है अपनी ड्यूटी से, dealing with her own stress, अपने जहनी तनाव का शिकार होती है, and in her department, और अपने डिपार्टमेंट में there is जब one patient. एक पेशेंट है, He is left alone in the corner. वो एक कोने पे अलग लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है बेड पे। He is so frustrated with his situation, नर्स जो कि खुद अपने तनाव का शिकार है, खुद परेशान है, yet she noticed that patient. फिर भी वो उस मरीज का ख्याल करती है। She goes to that patient. वो उस मरीज के पास जाती She है, comforts her वो उसको तसल्ली देती है, and she makes him to be feel comfortable that I am with you. और वो उसको तसल्ली देती है, उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान नहीं हो। So what we learn from this? हमने इस मिसाल से क्या सीखा? I know we have lot of issues, we have problems, मैं जानती हूँ कि हम सब की मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, but as a Christian, लेकिन एक मसीही होने के what is नाते your and my responsibility? मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? So we'll go to the second point. हम दूसरे नुक्ते की तरफ जाएंगे। Responsibility is a part of love. जिम्मेदारी मोहब्बत का हिस्सा है। Jesus entrust Mary to John. खुदा ने जॉन से, यूहन्ना से कहा, He makes sure that she is not left alone. उसने ये यकीनी बनाया कि वो अकेला नहीं, उसकी माँ अकेली ना रहे। According to Jewish law यहूदी कानून के मुताबिक and the 5th commandment, और 5वें हुक्म के मुताबिक honor thy father and thy mother. अपने माँ और बाप की इज्जत करो। So as the firstborn Jesus, पहला बेटा मसीह होने के नाते he was legally and morally responsible to care for his mother. वो कानूनी और इखलाकी तौर पर अपनी माँ का जिम्मेदार था कि वो उसकी केयर करे, वो उसकी जिम्मेदार था। So by securing her future, तो उसने अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने की बजाय, महफूज करने की बजाय, he showed उसने क्या जाहिर किया? true love is not a feeling, उसने बताया है कि एक सच्ची मोहब्बत एक एहसास नहीं है, but it is a fulfillment of a duty. ये अपने जिम्मेदारी की तकमील है। So that's why इसीलिए we are all called to care for our family. हम सब अपने खानदानों की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। And friends, और दोस्तों, and those God has placed the people in our lives. खुदा हमारी जिंदगी में लोग लेके आता है। So that's why
इसीलिए when we meet every Friday, जब हम हर जुमे मिलते हैं, I have noticed this one. मैंने ये देखा है, नोटिस Always किया we है, ask each other's family. हम एक दूसरे से एक दूसरे के खानदानों का भी पूछते We हैं। ask how is your family, how is your everything. हम पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है, आपकी फैमिलीज में सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है। So this is the responsibility सो ये हमारी जिम्मेदारी है as a part of love. मोहब्बत के हिस्सा के मुताबिक। So we'll go to the third point. हम तीसरे नुक्ता की तरफ जाएंगे। God creates a new family. खुदा एक नई जिंदगी बनाता है। So when Jesus was crucified, when he was on the cross, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, he built a new relationship. उसने एक नया रिश्ता बनाया। So Mary becomes a mother to John, सो जो मरियम थी वो यूहन्ना की माँ बन गई, and John becomes as a son to his mother. और यूहन्ना उसका बेटा बन गया। So this was not based on a biological connection, ये एक हयातियाती बात नहीं है, but it was on the basis of love and faith. ये ईमान और प्यार पे मबनी एक रिश्ता था। So this act, सो ये अमल, it is a blueprint for Christian community, ये मसीही कम्युनिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पे है, where believers जहाँ पे यकीन रखने वाले लोग adopt spiritual family responsibility अपनी रूहानी खानदानों की जिम्मेदारियों को देखते हैं for one another. एक दूसरे के लिए। So we all are one part for under Christ. हम मसीह में एक खानदान हैं, We belong to a spiritual family. हम एक रूहानी खानदान हैं। We are not connected here, right? I was different place. I belong from different place. हम यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मतलब हम दूसरी जगहों से आए हैं। But this is the connection what brother and sister we have. यस, और ये वो रिश्ता है जो हम भाइयों और बहनों में है। There is one more very harsh reality in today's world. आजकल के दौर की एक तल्ख हकीकत है, There are a lot of fights in the churches. चर्चेस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। It is because of the positions. ये पोजीशन के लिए हो रही हैं, It is because of misunderstanding. ये गलतफहमियों की वजह से हो रही हैं। But as a role that the Lord has given us, लेकिन खुदा ने जो हमें दिया है, रोल दिया है, जो हमारी जिम्मेदारी है, what we are doing? हम वो क्या कर रहे हैं? Are we coming together हम सब इकट्ठे हो रहे हैं to solve these issues, इन सारे मसलों को हल करने के लिए, to make understand for each another? ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें? I think no, right? नो। Come to a spiritual family. अगर आप एक रूहानी खानदान से ताल्लुक रखते And हैं if you say yourself, I am a Christian, और अगर आप अपने आप को मसीही कहते you हैं, should never go to court. तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। You should solve in between us, तो आपको चाहिए कि चर्च में इस प्रॉब्लम को, जो भी मसला बने, उसको सॉल्व करें, because we are one in Christ. बिकॉज हम खुदा में, मसीह में एक फैमिली हैं। So today we have to analyze ourselves. इसलिए आज हमें खुद को परखने की जरूरत है। The fights, the misunderstandings or whatever issues, it's common. जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, या जो भी मसले मसाइल हैं, ये हर जगह पे होते हैं, ये आम है। But God says, लेकिन खुदा क्या कहता है? forget it. उसको भूल जाओ, Come together इकट्ठे हो and worship me. और मेरी इबादत करो। So the fourth word, the fourth point, और चौथा नुक्ता, a love that gives while dying. एक प्यार जो मरते हुए भी दिया जा रहा था। So Jesus was losing everything. खुदा देखे, मसीह जो हर चीज खो रहा था, His strength, अपनी कुवत, his breath अपनी सांस and his life. और अपनी जिंदगी, But yet he was still giving. लेकिन फिर भी वो दे रहा था, वो जिंदगी दे रहा था। When he was in excruciating pain, जब वो एक इंतहाई दर्द में था, his focus was on the other's need. लेकिन उसका जो ध्यान था वो दूसरों की जरूरियात पे था। If we have some pain, अगर हमें थोड़ा सा भी दर्द हो, I think it's very unbearable, right? We just वो हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है। now the real example what I have, मेरे पास एक जो हकीकी एग्जाम्पल है वो ये है कि I work in cath lab. मैं कैथला में काम करती हूँ। So where angiography and angioplastics are done. So it is done by hand or by femoral. Nurses must be knowing this thing. तो वो हाथ जो होती है वो हाथ से, बाजू से, और फेमोरल वेन से होती है। नर्सिस को पता होगा। So when we are preparing the patient on table, जब हम पेशेंट को टेबल पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, the first thing what patient asks to us, पहली बात जो मरीज हमसे पूछता है, the patient says, मरीज कहता है, please give us anesthesia so we will sleep. मरीज कहता है कि हमें एनेस्थीसिया दे दो ताकि हम बेहोश हो जाएं, सो जाएं। I don't want to feel the pain मैं दर्द को महसूस नहीं करना चाहता, because there is one small needle which will be going inside. क्योंकि एक सुई है जो मेरे यहाँ से अंदर जाएगी। See, just a small little bit of pain we humans cannot experience.
देखें ये एक छोटी सी दर्द है जो हम इंसान होने के नाते इसको बर्दाश्त नहीं कर But पाते, Jesus, लेकिन मसीह ने, we cannot imagine from what he has gone through. हम नहीं इमेजिन कर सकते, हम इसका एहसास भी नहीं कर सकते वो किस दर्द से गुजर रहा था। So Jesus used his fading breath खुदा ने अपने उखड़ते हुए सांस के साथ not to cry for himself, अपने लिए नहीं रोया, but for his mother. लेकिन अपनी माँ के लिए। So this proved तो ये साबित करता है that this love was unconquered by pain. कि ये जो दर्द था उसने फतह पा ली मोहब्बत पे। This was his love ये उसका प्यार था that was providing shelter for her mother. जो अपनी माँ को मुहाफ़ज़त दे रहा था। In first century, पहली सदी में in Jewish culture, यहूदी कानून के मुताबिक, यहूदी कल्चर के मुताबिक, a widow without a son बेवा जो होती है एक बेटे के बगैर, to care for her जो उसकी केयर करता है, was socially and economically vulnerable. जो बेवा होती है वो यहूदी कानून के मुताबिक जो बेवा होती है वो अपने इकलौते बेटे के बगैर वो सोशली, समाजी तौर पर और इखलाकी तौर पर कमजोर होती है। By giving Mary to John, मरियम को, यूहन्ना को मरियम के हवाले करके Jesus was giving her खुदा उसे security, मुहाफ़ज़त दे रहा था, a home and a protector in a society एक प्रोटेक्टर दे रहा था माशरे में where women had very few rights. जहाँ पे लोगों को बहुत कम हकूक हासिल थे। Second thing, emotional comfort. दूसरी चीज जो मैं दे रहा था वो इमोशनल कंफर्ट थी, एहसास था। He knew वो जानता था that Mary is losing her child, कि मरियम अपना बच्चा खो रही है, but he gave the son लेकिन उसने बेटा दिया to walk चलने के लिए। with her through in that grief. इस दर्द में उसने उसको एक बेटा दिया। So the world says in today's time, आज के दौर में जो दुनिया बताती है, when you are empty, जब आप खाली हो take. तो ले लो, But Jesus said, लेकिन मसीह क्या कहता है, when you are empty, जब आप खाली हो still give. फिर भी दो। I think we must have experience हम सबका एक्सपीरियंस है इस चीज when a में। neighbor comes to us. जब एक कोई पड़ोसी हमारे घर आता है, Maybe there are some guests in our house. मे भी हमारे घर कोई मेहमान आए होते हैं, So she comes and she asks for some sugar or some wheat flour. वो जब आते हैं हमसे कुछ चीनी या आटा या कुछ भी मांगते हैं, Then the person she comes, she has one big this thing. हाँ, She उनके has पास एक everything. बड़ा कार्टन डब्बा होता है, Everything is there in her house. सब कुछ हमारे घर में मौजूद होता है। So when she asks, like, can I borrow some wheat flour? I have guest, or can I borrow some sugar? I have some guest. I'll like this. She asks. तो जब वो आता है और मांगता है कि मुझे कुछ दे दो, थोड़ा सा मैं ले लूं, आप मुझे अपने घर से दे दो, तो But that neighbor says, oh, I'm so sorry. Just now I finished. तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं कि नहीं अभी मेरा खत्म हो गया है, Just नहीं है now मेरे we had guests पास। and I हाँ, finished everything. हमारे अपने मेहमान आए हैं, हमने उनको दे दिए, खत्म हो गया। This is the related thing. The world says when you are empty, take. ये उस चीज से ताल्लुक रखती है जो मैंने अभी बताई कि जब आपके पास होता है तो आप नहीं देते, But Jesus say, लेकिन मसीह ने क्या कहा still give. कि अगर आपके पास ना भी हो फिर भी दो। So I want to conclude this sermon. मैं इस सरमन को कंक्लूड करना चाहूंगी। I want to take back all of you in 2019. मैं आप सबको 2019 में लेके जाऊंगी, During the COVID-19 pandemic, जब कोविड-19 की वबा फैली हुई थी। when hospital rooms were isolated, I think all must be aware of this thing. सब इस बात को जानते हैं कि जब कोविड-19 आया था तो जो हॉस्पिटल थे वो आइसोलेट हो गए थे, सबको अलग अलग कर दिया था। Families were not allowed to come inside. जो मरीज थे उनके साथ फैमिलीज को मिलने की इजाजत नहीं थी। So the third saying, what Jesus has said on the cross, तो जो तीसरा कलमा मसीह ने क्रॉस पर बोला, like, women, behold your son and behold your mother. औरत अपने बच्चे को संभाले और बच्चा अपनी माँ को। So the nurses or the medical staff, तो जो नर्सिस और मेडिकल स्टाफ हैं, they were like frontline medical staff working there, तो वो उस टाइम वो फ्रंट लाइन का काम कर रहे थे। and they became the surrogate family for their dying तो वो people. उस टाइम कोविड-19 के तौर पर वो जो लोग मर रहे थे उनके लिए एक सैरोगेट लोग What थे। relation we had with them? Nothing. हमारा उनके साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता But है। what second point I said, लेकिन मैंने दूसरा नुक्ता जो बोला responsibility is a part of love. कि जिम्मेदारी मोहब्बत का हिस्सा है। At that highest of pandemic time, उस वबा के फैलाव में many nurses and medical staff, बहुत सी नर्सिस और मेडिकल स्टाफ ने they played a role of beloved disciple. उन्होंने शागिर्दियत का रोल प्ले किया। Who is that? John. वो कौन था? यूहन्ना।
So they were standing at the bedside of the patients, वो मरीज के बिस्तर के पास सिराने पे खड़े हो जाती थी, where the patients were not able to see their daughter, their son, their parents or whatever उस relation. वक्त जब मरीज अपने वालिदैन को, अपने बहन को, अपने भाइयों को नहीं मिल सकते थे। So today we have to ask ourselves, आज हमें खुद से पूछने की जरूरत है, being a Christian, मसीही होने के नाते, living as a Christian, मसीही जिंदगी गुजारने के what is नाते your and my responsibility? आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? What is the unconditional love that Jesus had? Are we doing the same thing? वो अनकंडीशनल, वो बेतहाशा मोहब्बत क्या है जो खुदा ने सलीब पर बताई? So today we learn from this the third saying, आज हम इस तीसरे कलमे से सीखेंगे, see others even in your pain. दूसरों को देखें हता के आप दर्द में हो, Take responsibility in love. दूसरों की जिम्मेदारी लें, अगर आपको उनसे प्यार है तो Build spiritual families, अपनी रूहानी जिंदगियां बनाएं what we have today, जो आज हमारी है, and sacrifice for others. दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीखें। I really hope that Jesus is whatever this words was there, he blessed our heart, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस कलमे में मैंने बोला वो खुदा हमारे दिलों को उससे भर दे, and I hope that we live through these words in our life. और हम इन अल्फाज को, इस कलाम को लेके अपनी जिंदगी में जाएं। Let's pray. हम दुआ करेंगे। Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो, You have given these words in my heart. आपने मेरे दिल में ये कलाम दिया, ये अल्फाज दिए I pray that Lord, let this sermon be blessed for all of us. कि ये सरमन हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। And I pray मैं दुआ करती हूँ take charge of all of us. हम सबका चार्ज ले, हम Be सबकी your Holy जिम्मेदारी ले Spirit over here और अपने पाक रूह को हम पर उंडेल दे। and take charge of the season, the sessions what we are gonna do now. और अगला जो सेशन रह गया है उस पे भी अपना चार्ज ले। I pray this in Jesus' name. मैं सब कुछ मांगती हूँ यीशु मसीह के कादिर नाम में, आमीन।